computer. Yeah, this session is about writing an introduction in any IELTS essay. So I have taken all the 5 types of essays, and I'm going to show you how to write an introduction in only 2 lines. Now, I don't know how many of you know exactly that how introduction is required to be written. But before I do that, let me explain you. I believe most of you might be knowing that there are 5 types of essays. First is discussion essay. Second is opinion essay. Third is problem solution. Fourth is advantages and disadvantages. And fifth is double questions essay. Now there may be different sub type of essays within these types. For example, if I say discuss both the views and give your opinion, then you may also have discuss both the views, and there may be also a different type of essay in which you are required to discuss both the views and also required to give your opinion. But eventually these are 5 major types of essays that you might have. Yeah, one, there is also important type of essay that usually comes is advantages outweigh disadvantages. So considering that, it will be 6 type of essays. Okay, now you must be knowing exactly that any introduction can be written in 2 or 3 lines. Nothing, you should not be writing more than 3 lines, but at the same time, you should make sure that you should write, I mean, at least 2 lines are required to be written. This entire session will give you wonderful idea of how to write any introduction of any type of essay in only 2 lines. Usually, I have told you before that an introduction can be written in 3 lines. First is paraphrasing the entire essay. Second is writing the thesis statement. And finally, you may write an outline statement. But sometimes writing an outline statement ends up in writing a memorized statement. मतलब आपने कोई rectify किया है वो sentence आप लिख देते हो, जैसे कि this essay will now discuss both the sides of the argument followed by my own perspective. मतलब outline statement में आप ऐसा लिखते हो. ऐसे केस में a mature essay does not require to write an outline statement. Again मैं वापस कहना चाहूंगा, there is no penalty for writing an outline statement, but ज्यादातर outline statement में people try to memorize, people try to write sentences which are memorized. तो ऐसे केस में ये जो सेशन होगा, it will definitely help you out to write the entire introduction for any essay in only 2 lines. 2 line कौन सी line? First is paraphrasing, and second is writing a thesis statement. I hope it is clear to you. There are only 2 things, 2 lines. There are only 2 lines that you need to write in any essay. Out of these 5 types of essays: discussion wala essay, opinion essay, problem solution, advantages, disadvantages, and direct question essay. ये सारे ऐसे में ये सेशन आपको सिखाएगा कि ये सारे टाइप के ऐसे में यू कैन ओनली राइट इंट्रोडक्शन इन 2 lines. आई रिपीट, द फर्स्ट इज गोइंग टू बी पैराफ्रेज स्टेटमेंट, and second is going to be the thesis statement. Now, when writing the introduction of IELTS essays, there are 2 steps that need to be taken. First, paraphrase the task question and write a thesis statement. So all you need to do is write only 2 lines. Number one, paraphrasing the task question and writing a thesis statement. If the question asks for an opinion, then it must be in the thesis statement. काफी मैंने बताया कि ज्यादातर स्टेट एसेज में आपका ओपिनियन पूछा जाता है. सो इफ द ओपिनियन इज आस्क्ड, मेजॉरिटी ऑफ द एसेज द ओपिनियन इज आस्क्ड. अगर ओपिनियन पूछा जाता है, दैट यू नीड टू राइट द ओपिनियन इन द थीसिस स्टेटमेंट ओनली. जैसे कि आप एग्री करते हो, आप किस चीज से सहमत हो, आप कौन सी साइड पे एग्री डिसएग्री करते हो वगैरह. It depends on the type of essay you are writing, and hence they are not all the same. लेकिन अभी let us have a small recap of what we have done. You are only going to learn right now how to write introduction in only 2 lines. Number one, paraphrasing the task question followed by writing a thesis statement. अगर कोई ऐसे ऐसा है जिसमें आपको ओपिनियन पूछा जाता है, वो ज्यादातर ऐसे ऐसे में ही होता है, in that case you are going to write that in the thesis statement. ओके, नाउ थीसिस स्टेटमेंट का महत्व क्या है? पहला स्टेटमेंट जो इंट्रोडक्शन होता है वो तो पैराफ्रेजिंग होता है, वो भी हम सीखेंगे आज ऑल द टाइप ऑफ एसेज में. और दूसरा जो स्टेटमेंट है इज अबाउट पैराफ्रेजिंग, आई मीन दैट इज द थीसिस स्टेटमेंट. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू राइट अ थीसिस स्टेटमेंट इन द इंट्रोडक्शन फॉर एवरी टाइप ऑफ एसे. हर एक ऐसे में ज्यादातर थीसिस स्टेटमेंट होता है. A good thesis statement goes towards getting a good band score in the right section. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी बार थीसिस स्टेटमेंट क्या है, आउटलाइन स्टेटमेंट क्या है. तो ये सारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये सेशन पर्याप्त है. सो आई रिपीट, अ थीसिस स्टेटमेंट विल डेफिनेटली हेल्प द एग्जामिनर टू मेक श्योर आपको अच्छे बैंड्स, मतलब इफ यू रिटन अ गुड थीसिस स्टेटमेंट, यू विल एंड अप इन गेटिंग अ गुड स्कोर इन IELTS राइटिंग.
A thesis statement tells the examiner what the essay is going to be about, and the conclusion of the essay paraphrases the thesis statement. वापस कहना चाहूंगा, इंट्रोडक्शन में दो सेंटेंसेस. नंबर 1 is paraphrasing of the task. नंबर 2 is thesis statement. द थीसिस स्टेटमेंट, यही थीसिस स्टेटमेंट आपका कंक्लूजन भी होगा, वो पैराफ्रेज्ड हो जाएगा. सो थीसिस स्टेटमेंट जो आपने इंट्रोडक्शन में लिखा है उसी चीज को आप पैराफ्रेज करके लिखोगे कंक्लूजन में, बात वही रहेगी. यू आर नॉट गोइंग टू कम अप विद अ न्यू आइडिया, यू आर ओनली गोइंग टू पैराफ्रेज. पैराफ्रेज का मतलब क्या होता है? यू आर कन्वेइंग द सेम सेंटेंस, कन्वेइंग द सेम मीनिंग बट विद हेल्प ऑफ डिफरेंट सिनोनिम्स and by utilizing different type of sentence structures. The thesis statement is a logical way of showing the examiner what to expect in the rest of the essay. जो बच्चे मेरा लेक्चर्स बार बार अटेंड करते हैं, जिन्होंने अटेंड किया हुआ है, मैं हर बार कहता हूं कि हम एज एन एग्जामिनर विल ऑलवेज गिव यू और विल जज योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बाय गोइंग थ्रू योर इंट्रोडक्शन. आप पैराफ्रेजिंग कैसे करते हो, थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखते हो, ये बहुत पर्याप्त है उनके लिए in order to give you 7 bands, 8 bands, 6.55 और 5.5 bands. Anyway, so वापस कहेंगे, थीसिस इंट्रोडक्शन में दो सेंटेंसेस, फर्स्ट इज पैराफ्रेजिंग, सेकंड इज थीसिस स्टेटमेंट. थीसिस स्टेटमेंट को वापस यू आर गोइंग टू पैराफ्रेज, मतलब उसी चीज को वापस दोहराओगे आप कंक्लूजन में. बट आई एम नॉट राइट नाउ गोइंग टू टेक द कंक्लूजन, आई एम ओनली गोइंग टू टेक द इंट्रोडक्शन ऑफ ईच एंड एवरी टाइप ऑफ essay. Any questions, any doubts up to this point of time, students? Any questions, any doubts? Yes or no? Understood what I'm trying to say? Clear हो गया सबको? Everybody? Very good. That's great. Fine. Okay. अब आगे बढ़ते हैं. Writing a thesis statement. चलिए पहला आता है. The first is discussion essay question. Now I am going to give the essay topic और मैं समझाऊंगा कि इसका दो sentences में हम पूरा essay का introduction कैसे लिखेंगे. Now somebody will have to help me out. Who is going to read this? चलिए, who is going to help me out reading this? Guys? Yeah, Maya will help me out. चलिए. Maya, can you read? Yes, sir. Good evening. Good evening. Some people think a crime should always have a fixed punishment like life for murder, while others believe you should take the circumstances of the crime into account. Very good. Discuss both views and give your own opinion. Okay, Maya, if possible, don't unmute yourself. I would want All you to right. read the, all the essays. Now, ये डिस्कशन वाला ऐसे है. नाउ हियर इट इज गिवन दैट काफी लोग ऐसा मानते हैं कि क्राइम के लिए फिक्स पनिशमेंट होनी चाहिए. मतलब आपने जो टाइम क्राइम किया है उसके लिए फिक्स पनिशमेंट. मर्डर है तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मर्डर के लिए फांसी की सजा, या तो फिर कोई आपने चोरी की है तो उसके लिए क्या सजा है. या काफी लोग ऐसा मानते हैं कि सरकमस्टेंसेस जिसके अंडर ये क्राइम किया गया है उसको भी अकाउंट में लिया जाए. वी शुड नॉट हैव फिक्स पनिशमेंट फॉर एवरीबॉडी. मतलब वन साइज फिट्स ऑल वाली बात नहीं होनी चाहिए. डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन. आपको शायद पता होगा कि व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ डिस्कशन बेस्ड एसेस, you need to write on both the sides. But here we are not going to discuss how to write a proper paragraph. We are only going to discuss how to write an effective introduction in 2 lines. मैंने पहले भी बताया था कि इंट्रोडक्शन लिखने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दो चीज करनी है आपको. टास्क स्टेटमेंट यहाँ पे जो है, ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है, दिस इज बेसिकली अ टास्क स्टेटमेंट. मतलब ये ऐसे का टॉपिक है. इस चीज को आप इंट्रोडक्शन में पैराफ्रेजिंग करोगे इन द फर्स्ट लाइन, and in the thesis statement you are going to give your own opinion. Let us see how it is done. Yeah, read, Maya. A number of people believe serious crimes need to have a set punishment, whereas others argue that the situation of the crime must be considered. Exactly. Just yeah, up to this point of time, I would like to ask everybody, have you read and understood what we have done in the first line? Everybody, what we have done is just paraphrase this. हमने इसी चीज को यहाँ पे दोहराया है, in other words, in other ways, by utilizing different type of paraphrasing techniques such as utilizing synonyms, changing the word order. लेकिन बात वही है जो यहाँ पे लिखी है. I want everyone to go through it once again. Yeah, 15 seconds. Go through it and see whether it is the same thing which is mentioned over here. Is it clear or not? I want everybody to write in the chat box. Understood? Can you see that it is basically the paraphrasing of the task statement? We have not done anything else. Clear, everybody? Sure. Now I am going to read the thesis statement. Yeah, read it, Maya.
I agree that the circumstances of the crime itself should be taken into account because every case is different. तो मैंने ये कहा कि भाई हम लोग वन साइज फिट्स ऑल, मतलब कि हर पनिशमेंट के लिए ये कोई मेन्यू नहीं है कि ये है तो ये है, ऐसा नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पे लिखा है थीसिस स्टेटमेंट में कि आई एग्री दैट सर्कमस्टेंसेस ऑफ द क्राइम इटसेल्फ शुड बी टेकन इनटू अकाउंट, मतलब सर्कमस्टेंसेस तो ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हर एक केस एक दूसरे से अलग है। My major thing that I would like to tell you is that we have only written 2 lines. First is paraphrasing of the essay or the task statement, and the second is the thesis statement. ये पूरा introduction खत्म हो गया. Any questions, any doubts, students? You can utilize the way that I have given it before, but basically it is the same thing. Any doubts, any queries, students, now? Okay, is it clear? Very good. Yeah, write in the chat box so that I can understand whether it is clear or not. Okay, great. Understood? Yeah, let us go for the second type of essay. Yeah, agree or disagree? Yeah, Maya, can you read? Yes, sir. Society would benefit from a complete ban on all forms of advertisements. To what extent do you agree or disagree? Exactly. Okay, now for the most important thing, society would benefit from a complete ban on all forms of advertisements. मतलब advertisements को टोटल बैन कर देना चाहिए. टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? अगर आप मेरा दूसरा सेशन पढ़ोगे तो मैंने समझाया हुआ है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन यूटिलाइज, बट यहाँ पे सिर्फ 2 sentences में कैसे ऐसे लिखा जाए इंट्रोडक्शन, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. ओके, नाउ कैन यू रीड? या माया. It is argued that society would be better off if every type of advertising was prohibited. I disagree that all advertising should be disallowed, as this policy would not benefit society and would negatively impact the economy. So I want everybody to go through this once again, and you'll definitely clear out all your doubts. Just go through it once again, 10-15 seconds more. Yeah, you can utilize mostly agree, Deepak. Yeah. Let me know when you're clear, everybody. Yeah, you can say, Drumil, that I strongly believe, I believe 100. Yeah. Okay, is it clear now? Sure. Very good. So this is the second type of essay. आप एक बार देख लो, इसका पूरा recording भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको बहुत बहुत ये आपका clarity ला देगा कि what exactly needs to be done. Only 2 sentences essay. I mean introduction. Done, everybody? The first sentence is the paraphrasing. The second statement is the the thesis statement wherein I am putting my own opinion. ये दूसरा जो essay type है, that is agree disagree essay. Okay, let us move on to the third type of essay. Advantages, disadvantages. Yeah. Maya, can you read? Yes, sir. Yeah. People now have the freedom to work and live anywhere in the world due to the development of technology and transportation. What are the advantages and disadvantages of this? Now in this essay you are not asked about your opinion, तो आपको opinion thesis statement में देने की जरूरत नहीं है. टॉपिक टास्क स्टेटमेंट ये कहता है कि अब लोगों के पास एक फ्रीडम है कि कहीं पे भी काम कर सकते हैं, कहीं पे भी वो लोग रह सकते हैं, ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपोर्टेशन विच अदरवाइज वाज नॉट पॉसिबल इन द पास्ट. तो आपको सिर्फ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखने हैं. अगेन 2 statements are enough for you to write a thesis, I mean introduction. Yeah, can you read, Maya? Yes, sir. In recent times, people can reside wherever they want in the world because of the progress that has made in technology and transport. The main advantage in this case Is the in career this opportunity. is the career opportunity that a person can get outside their own country, while a possible downside would be the stress of adjusting to living in a different culture. Okay. Now the first statement again is a paraphrased. It's a paraphrased statement of this task statement. People now have the freedom to work and live anywhere. इसका ये paraphrasing है. The red one, the red statement is the thesis statement.
Now, whenever you are writing advantages and disadvantages essay, and you are only required to write advantage या तो फिर कोई भी essay, particularly advantages, disadvantages and problem solution, it is advisable कि कौन सा advantage है और कौन सा disadvantage है वो आप लिखो और उसको expand करना है आपको body paragraphs में. You can look over here. I have written very specifically. The main advantage is the career opportunities that a person can get outside their own country. तो आपका बॉडी पैराग्राफ 1 होगा, आप उसमें ये लिखोगे कि कैसे कैरियर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती है बाय लिविंग आउटसाइड ऑफ देयर ओन कंट्री. तो ये बॉडी पैराग्राफ 1 में ये चीज होगी. और वाइल is going to be the downside, मतलब कि disadvantage, while a possible downside would be the stress of adjusting to living in a different culture. मतलब कि बॉडी पैराग्राफ 2 में आप डिसएडवांटेज लिखोगे स्ट्रेस का, जिस जो होता है आप डिफरेंट कल्चर में एडजस्ट होते हो उसके कारण. And then finally followed by conclusion. In conclusion, again you are going to paraphrase this statement, but I am not discussing the conclusion right away, but this is a very nice introduction, the way you should know how to write an advantages disadvantages essay. आप देख सकते हो मैंने thesis statement में, because the opinion is not asked, I am not mentioning my opinion over here, and you also need to take care of that part. If the opinion is not given, please don't, or not asked rather, please don't give your opinion. Just go through it and let me know when you are done reading. Write in the chat box when you are done reading. क्लियर हो गया? 2 sentences का concept क्लियर हो गया? Okay, great. Now let us move on to the 4th type of essay. एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, लेकिन यहाँ पे ऐसा पूछा गया है कि एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस है, या तो फिर आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वेदर डिस्क्राइब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड गिव योर ओपिनियन. तो थीसिस स्टेटमेंट में ये चीज को मेंशन करना जरूरी है. या कैन यू रीड दिस एसे? Yes, sir. Some experts believe that it is better for children to begin learning a foreign language at primary school rather than secondary school. Do the advantages of this outweigh the disadvantages? तो आपको पूछा गया है कि क्या ये हमने पहले भी किया था, लेकिन do you believe that foreign language should be started to be learned at a primary school rather than a secondary school? क्या उसका advantages का पल्ला भारी है in comparison to disadvantages? Again, 2 liners, just 2 lines. Please go ahead. Some experts argue that children should study a new language at primary school as opposed to secondary school. This essay agrees that the advantages are stronger than the disadvantages because youngsters pick up and master new languages much easier than at high school age. So this essay agrees. मैंने पहले भी बताया था, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, I agree that, but it is much more formal in an academic language. आप ऐसा लिखो कि this essay agrees. यहाँ पे आपने अपना ओपिनियन भी बता दिया कि एडवांटेजेस का बल्ला भारी है in comparison to disadvantages. And the first line is the paraphrase statement of this task statement. Just go through it properly. Just go through it properly. Yes, Fanil, I also teach offline. And let me know when you are done reading. Clear, everybody? Okay, great. Done. Let us move on to the 5th type of essay, problem solution question. Read, Maya. People believe Now, people who live in big cities face a number of problems in their daily life. What are the main issues people in cities face? How can this be tackled? Again, this is a problem solution question. आपको देख के ही पता चल जाएगा what are the main issues people in cities face. How can this be tackled? So you are basically required to give problem. क्या प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी द पैराफ्रेज स्टेटमेंट ऑफ दिस स्टेटमेंट फॉलोड बाय
प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, ये बहुत अच्छी, ये आपको सीखना पड़ेगा कि हाउ टू राइट बोथ प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन टुगेदर इन अ थीसिस स्टेटमेंट. लेट अस सी. राइट, रीड. या माया. People living in large cities have to deal with many issues in their day to day lives. The main problems people face are high rental cost and overcrowding. Some possible solutions would be build more affordable housing and more green spaces. Very good. So Would they have be mentioned, yeah, so they have mentioned two problems and two solutions. बहुत अच्छी तरह से ये thesis statement लिखा हुआ है. I would recommend everybody to go through it once again. Very nice, very nicely. This thesis statement has been written. See how two problems have been mentioned and see how two solutions have been given. The thesis statement has been divided into two parts. One sentence is giving the problem, and the second sentence is giving the solution. You can also combine this into one statement, but because the size of, I mean, the length of the statement is very big, sentence is very big, we have divided one, allocated one for the problems and the other for the solution. That is also absolutely acceptable. Go through it. See how paraphrasing has been done of the task statement. People who live in big cities. देखो बहुत अच्छा तरीका है ये. Yes, it can be written in block to block, Akshar. Yeah, yeah. Let me know when you are done reading. Yeah, done, everybody? Okay. Let us move on to the sixth type of question, direct question. Yeah, read. Maya? Yes, sir. The internet is a great source of information and has opened up opportunities for people to learn all around the world. Hmm. Is all information reliable on the internet? What would be done to What? control information? Yeah. What could be What done? could be done to control information online? So this is a direct question essay in which you are asked direct questions. You can see two questions have been asked to you. Now that means this is very clear. The first statement, that is paraphrase statement, is going to be this. You are going to do paraphrasing of this statement. And in the thesis statement, you are required to give answers of both the questions. That means you need to answer whether all information is reliable on the internet. उसका जवाब भी देना पड़ेगा, yes or no, जो भी है. एंड व्हाट कुड बी डन टू कंट्रोल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन, क्या करना चाहिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन को हम कंट्रोल कर पाए. सी हाउ इफेक्टिवली द इंट्रोडक्शन हैज बीन रिटन. रीड, माया. The World Wide Web is a huge source of knowledge which has created opportunities for people worldwide to study. However, not all information on the internet can be trusted, so the government needs to put measures in place to protect people from false information. Okay, thank you, Maya. Thank you so much. Thank you, So, sir. thank you. Now, the first statement, the World Wide Web is a huge source of knowledge which has created opportunities for people worldwide to study. See how wonderfully the paraphrasing has been done. Now, see the answer of the first statement. I mean, the first question, is all information reliable on the internet? Uska jawab ye hai. However, not all information on the internet can be trusted. Trusted का हमने कर दिया है paraphrasing by, I mean, sorry, in reliable का कर दिया है trusted. And what could be done to control information online? This, the comma, the statement after the comma gives the answer of this second question. So the government needs to put measures in place to protect people from false information. तो इसका जवाब ये क्या हम क्या कर सकते हैं करने के लिए, तो गवर्नमेंट को थोड़े से मेजर्स डालने पड़ेंगे ताकि लोगों को बचाया जा सके from the unnecessary information. So see how effectively we have written introduction in all the type of essays in 2 lines. I repeat, this is not the only way you can write, but this will definitely clear out कि आप 2 सेंटेंस में कैसे कोई भी ऐसे का इंट्रोडक्शन लिख पाओगे. अब सीधा जो एग्जामिनर होगा उसको पता चल जाएगा. Now what is going to be written in the body paragraph 1? Yes, can you help me out what you are going to write in body paragraph 1? Everybody, what you are going to write in body paragraph 1? Yes, can anybody help me out? I would like to unmute you. Who is going to speak? What we are going to write in body paragraph 1? Yes, Emily, can you say what are you going to write? Yep.
What are we going to write in body? Who is going to speak? I want somebody to explain me. Yeah. So yeah, finally, can you explain? Okay, I don't know. I mean, somehow the mic is not getting muted. So in body paragraph 1, you are going to write not all information on the internet it can be trusted. Yeah, yeah, yeah. Hamali, can you speak? No, I don't know what is happening. Anyway, so the most important thing, the first thesis statement ये तो ठीक है, लेकिन बॉडी पैराग्राफ 1 में आप ये लिखोगे हाउ नॉट ऑल द इन्फॉर्मेशन, कैसे ट्रस्ट नहीं की जा सकती. एंड सेकंडली इन बॉडी पैराग्राफ 2 यू आर गोइंग टू गिव आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज गवर्नमेंट को क्या मेजर्स लगाने चाहिए ताकि यू कैन प्रोटेक्ट the people from false information. Okay, so this ends our session of this, and I'm going now on to move on to a very important session of reading. We are going to start with reading. Let me see how you do it. Is it comfortable, everybody? Is it understood? First of all, yes or no? नो आपने जो देखिए, काफी लोग ऐसा पूछ रहे हैं, काफी लोग ऐसा पूछ रहे हैं कि शुड आई राइट द मोर प्रॉब्लम्स इन द बॉडी पैराग्राफ. एक चीज का याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, कि आपने जो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन जो थीसिस स्टेटमेंट में लिखे, उसी प्रॉब्लम को आपको एक्सपांड करने पड़ेगा इन द बॉडी पैराग्राफ. यू कैन नॉट गो फॉर राइटिंग अ न्यूअर प्रॉब्लम इन द बॉडी पैराग्राफ. थीसिस स्टेटमेंट का नाम ही थीसिस स्टेटमेंट उसी लिए है, so that you can understand or the examiner understands what you are going to write in the body paragraphs. Please try to make sure you don't need bring any new idea that you are not written or mentioned in the introduction. ये चीज आपको समझना जरूरी है. Okay, fine. Let us move ahead with the next part. Very important and very informative. हम आगे बढ़ते हैं. Just a minute. छोटा सा true false not given की प्रैक्टिस करते हैं, आपको थोड़ा सा शॉक देते हैं. So as you all know, छोटा सा बहुत मजे वाला ये true false not given है. I don't know how many of you will be able to do it precisely. As you all know that there is one type of question that is what we call as true false not given. I'm not going to go into details of this. काफी लोगों को पता है कि true false not given question क्या होता है. A paragraph is given to you, and following this paragraph there are questions. Now many of you might be thinking, sir हमें पता है, लेकिन still it is my responsibility to just give you a brief out of what true false not given is all about. So in true false not given, you are going to be having a paragraph, and below the paragraph these are the questions. I mean, these are not the questions that are going to come down after every paragraph, but you are going to have questions. What you need to do is you need to read the question, compare that with the paragraph given, and if the information matches, you are going to give answer as yes. If the information is contradictory, you are going to give answer as no. And if the information is not given, you need to give answer as not given. So these are the only three answers that you are required to give: yes, no, and not given. So I'm not going to directly going to explain you further. I'm just going to give you a small practice, and then I'll explain what is the answer. I'm going to give you 3 minutes. So this is the paragraph. Many lecturers find their jobs very rewarding. और A, B और C आपके क्वेश्चंस है, तो आपने क्या करना है, A को इसके साथ कंपेयर करोगे. सो यू विल बी हैविंग 3 आंसर्स. A, B और C के 3 आंसर होंगे. A का शायद यस हो तो इसका नो हो सकता है, इसका भी शायद यस हो सकता है, इसका भी नो हो सकता है, नॉट गिवन भी हो सकता है. सो देयर विल बी 3 आंसर्स. So when you are done, let me know. We'll check out the answers. The time starts now. I'm going to give you 3 minutes. शांति से, सुकून से करना, वेरी इंपॉर्टेंट. नीतीश, आपको ए नहीं लिखना है. सी, आई डोंट अंडरस्टैंड. स्टूडेंट्स, यू डोंट नीड टू राइट ए, बी और सी. आपको ए के सामने ट्रू है, फॉल्स है या नॉट गिवन लिखना है. आई डोंट अंडरस्टैंड. सी, यू नीड टू गिव आंसर लाइक दिस. लेट मी एक्सप्लेन. आई बिलीव दैट मेनी ऑफ यू आर कंफ्यूज्ड. आपको ऐसे आंसर लिखना है. ए, आई एम नॉट सेइंग दिस इज द राइट आंसर. मैं ये लिख रहा हूँ वो सही आंसर है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं. ट्रू, फिर बी जो है फॉल्स फॉर एग्जाम्पल, एंड सी जो है नॉट गिवन. So you need to give answers like this.
ए, बी और सी का, और हर एक के लिए एक पैराग्राफ तो ऊपर वाला ही है. So I hope it is clear to you now. Understood? Everybody, what you are supposed to do? Okay, so just go through it probably and then come up with the answers. I want answers from everybody. सब मुझे बताएंगे कि आंसर्स क्या होगा, और हम इसको हम वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस एज वेल. लेट अस सी हु डज इट राइट. Okay, so let me know when you are done. Let me know when you are done. A, B और C का आंसर ट्रू फॉल्स या नॉट गिवन है, मुझे बताए क्या होगा आंसर. Okay, are you done everybody? We can move further then. आप सिर्फ या okay, shall we move on to the answers now, or you need some time as well? Can we move on to the answers now, everybody? Or you want some time to do it? Right? Yes or no? Okay, Rutu, you need more time. Done. Yeah, let us move on to the answers now. Fenil, I know you are very quick, but I need to also take care of others. Yes, many are doing the B1. Come up with the C now. Okay, so let us check the answers now. Let us check the answers. Many lecturers find their jobs very rewarding. 3 क्वेश्चंस है आपके सामने जिसके लिए एक ही पैसेज है, एक ही लाइन है. फर्स्ट, मेनी लेक्चरर्स आर वेल पेड. सेकंड, ऑल लेक्चरर्स गेट समथिंग पॉजिटिव फ्रॉम देयर वर्क. द मेजॉरिटी ऑफ लेक्चरर्स गेट सेटिस्फेक्शन फ्रॉम देयर वर्क. नाउ लेट अस चेक द आंसर्स. ये रहे आपके आंसर्स. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस आंसर्स करेक्ट. पहला है मेनी लेक्चरर्स आर वेल पेड. आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी नॉट गिवन. क्यों नॉट गिवन है? टू फाइंड समथिंग रिवॉर्डिंग मीन्स टू फाइंड समथिंग सेटिस्फाइंग. So the statement does not give any information about how much money lecturers are paid. मैं अगर बोलता हूं many lecturers find their jobs very rewarding, वो rewarding किसी भी हिसाब से हो सकता है. It can be by आपको for example job satisfaction बहुत अच्छा है, शायद पैसे ज्यादा मिलते हो. लेकिन ये कहना कि everybody is well paid is not something. इनको पेमेंट कितना मिलता है उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है. रिवॉर्डिंग है, बट रिवॉर्डिंग डज नॉट नेसेसरली मीन दैट दे आर वेल पेड. रिवॉर्डिंग काफी और तरीके से भी हो सकता है. इसी के कारण द आंसर ऑफ ए इज नॉट गिवन. सेकंड, ऑल लेक्चरर्स आर गेट समथिंग पॉजिटिव फ्रॉम द वर्क. यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैनी और ऑल. मैंने पहले भी बताया था, नोटिस द ओरिजिनल सेंटेंस इज मैनी नॉट ऑल. मैनी मतलब ज्यादातर या फिर कुछ कुछ लोग. मैनी मतलब देखिए, मैनी की कोई डेफिनेशन नहीं है. मैनी और मोस्ट में फर्क है. मोस्ट मतलब ज्यादातर, लेकिन मैनी मतलब 10-15 भी हो सकते हैं, 20-25 भी हो सकते हैं, 70-80 भी हो सकते हैं. वी कैन नॉट डिफाइन दैट टर्म मैनी. और यहाँ पे ऑल है. सो दैट मीन्स द आंसर इज गोइंग टू बी नो. एंड द थर्ड वन, द मेजॉरिटी ऑफ द लेक्चरर्स गेट सेटिस्फेक्शन फ्रॉम देयर वर्क. नाउ व्हेन आई से मेजॉरिटी मतलब इसका मतलब क्या होता है? सेंटेंस डज नॉट टेल यू वेदर द मेजॉरिटी ऑफ द लेक्चरर्स गेट सेटिस्फेक्शन फ्रॉम देयर वर्क. इट डज नॉट से व्हाट प्रपोर्शन ऑफ द टोटल मैनी रिप्रेजेंट्स. मैंने पहले भी बताया था, मेजॉरिटी मतलब ज्यादातर, लेकिन मैनी मतलब 5-10 भी हो सकते हैं, 20-25 भी हो सकते हैं, 70-80 भी हो सकते हैं. सो यू कैन नॉट से फ्रॉम दिस दैट दिस इज मेजॉरिटी है कि नहीं, वो पता नहीं सकते. मैनी मेजॉरिटी हो सकती है, लेकिन मैनी की कोई परिभाषा नहीं है. वो कुछ भी हो सकता है, 10-15 भी हो सकता है, 20-25 भी हो सकता है, 70-80 भी हो सकता है. हम फॉल्स या फिर नो उसलिए नहीं दे रहे क्योंकि ये मैनी का मतलब मेजॉरिटी भी हो सकता है. ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन हो ही सकता है. इज नॉट समथिंग दैट वी कैन से, एंड देयरफॉर द आंसर इज गोइंग टू बी नॉट गिवन. आई वुड लाइक टू नो हाउ मेनी ऑफ यू गॉट ऑल करेक्ट. प्लीज से हाउ मेनी ऑफ यू गॉट ऑल करेक्ट. देखो किसी का आंसर नहीं आया, दैट मीन्स नन ऑफ यू गॉट ऑल करेक्ट. Yeah, last one is wrong. But have you understood now, everybody? This is just for a kind explanation. आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है whether you under how many of them you got it right or wrong. But I hope this must have cleared out all your doubts. Understood, everybody?
Okay, no issues, no issues. This is just a way of understanding. But let us go ahead with the second question. चलिए let us see. 5 minutes time. बिल्कुल शांति से कीजिएगा so that you understand everything. इन केस इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी ऑफ दिस वर्ड्स डू लेट मी नो. मैं बताना चाहूंगा इसमें वर्ड्स क्या है. कंप्यूटर्स गेनिंग इन पॉपुलैरिटी मतलब उनकी पॉपुलैरिटी में ज़्यादा इजाफा हुआ है. और गेनिंग इन पॉपुलैरिटी डिस्पाइट देयर कॉस्ट, उनकी कॉस्ट होने के बावजूद. कॉस्ट मतलब वो महंगे है. फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर्स आर गेटिंग चीपर, कंप्यूटर्स आर एक्सपेंसिव, एंड एक्सपेंसिव मतलब महंगे. Computers used to be more popular than they are now. I hope there is no word that you probably might not be able to understand. So let me know when we can jump onto the answers. Okay, मैं देख रहा हूं कि एक ही बंदे का सही आंसर आया है. It is difficult. Let us see how it works. Computers are getting cheaper. Let us see the answers. Let us check the answers. The answer of A is not given. The reason is the sentence states that computers are expensive despite the cost, but does not say whether they are becoming more expensive, becoming cheaper, or whether the cost is static. मतलब कहीं ऐसा नहीं है कि वो हो सकता है कॉस्टली है, लेकिन हो सकता है उससे पहले ज्यादा कॉस्टली होते हो, अभी भी कॉस्टली है. लेकिन इसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि वेदर दे आर गेटिंग चीपर और नॉट, एंड हेंस द आंसर इज गोइंग टू बी नॉट गिवन. तो पहले का आंसर जो होगा इज गोइंग टू बी नॉट गिवन. कंप्यूटर्स आर एक्सपेंसिव, यस डिस्पाइट द कॉस्ट. वो तो लिखा है कि एक्सपेंसिव अभी तो है, so they are expensive. So answer of B is going to be yes. Second is going to be yes. And finally the third one, computers used to be more popular than they are now. अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर्स गेनिंग मतलब अभी उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है. और यहाँ पे लिखा है सी में कि उनकी पॉपुलैरिटी जो अभी है उससे पहले ज्यादा थी. लेकिन पैराग्राफ में ऐसा लिखा है कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है. दैट मीन्स if the computers are gaining in popularity, then they must have been less popular in the past than they are now. समझने वाली बात है, गौर से देखो उसको. यहाँ पे लिखा है सी पे कंप्यूटर यूज टू बी मोर पॉपुलर देन दे आर नाउ, और यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर्स आर गेनिंग मतलब अभी उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है. लेकिन क्वेश्चन में पहले पॉपुलैरिटी ज्यादा थी. दैट मीन्स द इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी नो. आई वांट यू पीपल टू गो थ्रू इट वंस अगेन. एक बार गौर से देख लो और मुझे बताओ. Only one of them has got all correct. Very good. Maya has got all correct. Who has got all correct? Everybody? Yes, who has got all correct? Very good. There are two participants who are saying, Hemali and Yatri are saying that they have got all correct. Parth is saying that he has got all correct. Very good. Drumil is saying that he has got all correct. Very nice. Many of you have got all correct. हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मेजबिन, लेकिन गेटिंग चीपर कॉस्ट का मतलब समझ लो ऐसा है कि पहले कॉस्टली था, उससे भी थोड़ा सा कम कॉस्टली हुआ है, लेकिन अभी भी कॉस्टली है. बट ये पहले से चीपर हुआ है, तो ये नहीं ही हुआ है ऐसा नहीं कह सकते. उसी के कारण उसका आंसर नॉट गिवन दिया है मेजबिन. क्लियर? ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन. इफ दिस इज डन, लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट वन, थर्ड.
लेट अस सी हु गेट्स दिस राइट. चलिए. एफ्लुएंस का मतलब एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग एफ्लुएंस. एफ्लुएंस का मतलब रिचनेस, लोग ज्यादा पैसे वाले होने लगे, इसका मतलब होता है एफ्लुएंस. एफ्लुएंस का मतलब लोग ज्यादा पैसे वाले, पैसे ज्यादा आ गए हैं लोगों के पास, लोग और रिच हो गए हैं. बिल्कुल शांति से जवाब देना, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए. पता चलना चाहिए कहाँ पे नो लिखना है, कहाँ पे नॉट गिवन, कहाँ पे ट्रू या फिर यस. Okay, shall we check the answers now, everybody? Okay, as a result of increasing affluence, an ever larger number of families now have two cars. पहले इसका मतलब समझाने की मैं कोशिश करता हूँ आपको. Yes, I can see a lot of answers are coming. Thank you so much for writing answers. Everybody is attempting. That is the most important part. As a result of increasing affluence, ज्यादा पैसे आने के कारण लोग ज्यादा रिच हो रहे हैं. एवर लार्जर नंबर ऑफ फैमिलीज नाउ हैव टू कार्स. ज्यादा से ज्यादा फैमिलीज में अब दो दो कार्स होने लगी है. ज्यादा से ज्यादा मतलब पहले जो था उससे ज्यादा फैमिलीज में अब कार्स होने लगी है. पहले जो था उससे ज्यादा फैमिलीज में कार्स हो रही है. पहले, अब मैं वापस कहना चाहूंगा, पहले जो था उससे ज्यादा फैमिलीज में कार हो रही है. लेकिन कहीं पे भी जिक्र नहीं है कि सब बहुत मोस्ट फैमिलीज नाउअडेज हैव ए कार, ऐसा जिक्र नहीं है. पहले की कंपैरिजन में अब ज्यादा लोगों के पास कार्स होने लगी है, दो कार्स होने लगी है. लेकिन कहीं पे भी ऐसा जिक्र नहीं है कि जब मोस्ट फैमिलीज हैव गॉट टू कार्स. तो उसी के कारण आंसर ऑफ ए इज गोइंग टू बी नॉट गिवन. यू नीड टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे लिखा है एवर लार्जर नंबर ऑफ फैमिलीज नाउ हैव टू कार्स. लार्जर का मतलब यू आर कंपेयरिंग दैट विद द पास्ट, बट देर इज नो मेंशन कि मोस्ट फैमिलीज नाउअडेज हैव टू कार्स, उसका जिक्र नहीं है. In comparison to the past, more number of families have got two cars, but there is no mention about most families having two cars, and therefore the answer of A is going to be not given. Second, people are getting richer. ये तो लिखा ही है as a result of increasing affluence. That means the answer of this is going to be yes. लेकिन car are becoming more expensive. लोगों के पास पैसे ज्यादा आए हैं लेकिन कार्स महंगी हो गई है, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है. That means the answer of C is going to be not given. Understood or not, everybody? Very good. Many of you are getting all the, ये एक मिनट मैं दीपक जी, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ऐसा है कि ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है. दैट्स वन ऑफ द रीजन दैट आई ऑलवेज डू ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एवरी टाइम आई टेक अ लेक्चर. बट इट्स फाइन. फाइन, यू कैन ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव योर प्रोफिशिएंसी. यू डोंट नीड टू वरी. देखिए, मैं सब लोगों को ये कहना चाहूंगा, काफी बच्चे ऐसा बोलते हैं सर कोई भी हो जाए ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में गड़बड़ होती होती है. ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादातर बच्चों का ये प्रॉब्लम है that they face problems in true false not given. You are not the only one in this universe to have to be facing this problem. सिर्फ ये तात्पर्य मेरा है कि आप इसको समझो. काफी क्वालिफाइंग वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको परेशान करते हैं. देखो जहां पे देखो छोटा सा ये तीसरा देखिए आप, जैसे कि कार्स आर बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव. काफी लोगों ने उसका यस आंसर दिया है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लोगों के पास पैसे ज्यादा आ रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं, कहीं पे भी नहीं लिखा कि कार्स ज्यादा महंगी हो रही है. तो जाहिर आंसर इज गोइंग टू बी नॉट गिवन. ये धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कहाँ पे आपको नॉट गिवन देना है, कहाँ पे नो देना है, लेकिन क्लैरिटी धीरे धीरे आ जाएगी.
सर आम में नो क्यों नहीं आएगा? ए में देखो, मोस्ट फैमिलीज नाउअडेज हैव 2 कार्स। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, काफी लोग उसका सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों है। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि अब ज्यादा पैसे हो रहे हैं, इवन लार्जर नंबर ऑफ फैमिलीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन लार्जर नंबर ऑफ फैमिलीज का मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट लार्जर नंबर ऑफ फैमिलीज मतलब लार्जर, यू आर कंपेयरिंग दिस विथ द पास्ट। पहले अगर 10 लोगों के पास 100 लोग थे, उसमें 10 लोगों के पास अगर 2 कार्ड्स थी, अब वो बढ़ के 15 लोगों के पास हो गई है। या तो फिर 50 लोगों के पास थी, अब वो बढ़ के 60 लोगों के पास हो गई है। लेकिन फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन वी कैन नॉट फाइंड आउट कि ये मोस्ट लोगों के पास है कि नहीं। हो सकता है 100 में से 10 से 15 हो गए हैं, लेकिन फिर भी मोस्ट नहीं हुए। मोस्ट कब होंगे? जब 60 थी अब 70 हो गई है। तो ये आंकड़ों का जिक्र कहीं नहीं है। यू कैन नॉट से मोस्ट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन, और उसी के कारण इसका आंसर है नॉट गिवन। अंडरस्टूड नाउ एवरीबडी? ओके ग्रेट। देखो इसके लिए पार्ट्स, एफ्लुएंस, यू नीड टू इंप्रूव योर वोकैबुलरी। एफ्लुएंस का मतलब रिचनेस, तो ये वोकैबुलरी थोड़ा थोड़ा आपको उस पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। ओके नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट, थर्ड सेशन। ये भी बहुत मजा आएगा आपको। वी आर गोइंग टू टेक समरी। काफी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि समरी में ज्यादातर प्रॉब्लम्स होती है, सो आई एम गोइंग टू टेक अ समरी टुडे। नाउ एज यू ऑल नो दैट आईएलटीएस रीडिंग में समरी भी आती है। आई मीन मेनी ऑफ यू नो वर टेलिंग मी दैट समरी में सर प्रॉब्लम्स हो रही है। तो समरी में बताना चाहूंगा, इन आईएलटीएस यू हैव गॉट 2 टाइप्स ऑफ समरीज। वी आर गोइंग टू ब्रीफ आउट दिस। द फर्स्ट वन इज, देखो ये समरी 2 टाइप की है। दिस समरी इज समरी विदाउट ए बॉक्स। यू आर गिवन ए पैराग्राफ, यू आर गिवन दिस समरी। याद रखना कि पैराग्राफ बहुत बड़ा होता है, समरी बहुत छोटी होती है, बट इट इज बेसिकली कवरिंग मेजोरिटी ऑफ द पैराग्राफ और पैसेज। और ये जो समरी होती है, ये जो पैराग्राफ है उसका ही समराइजेशन है, लेकिन यहाँ पे काफी वर्ड्स मिसिंग है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैराग्राफ। तो ये समरी है, लेकिन यहाँ पे देखो समरी नीचे बॉक्स नहीं दिया है, सो यू नीड टू डायरेक्टली फाइंड आउट द आंसर फ्रॉम द पैराग्राफ। और दूसरी जो समरी आती है वो है समरी विथ ए बॉक्स, मतलब आपको समरी दी जाएगी, पैराग्राफ यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन पैराग्राफ भी दिया जाएगा, एंड फॉलोइंग दिस देयर इज अ बॉक्स। और ये जो बॉक्स में जो वर्ड्स है, दिस आर बेसिकली द सिनोनिम्स। दिस आर मेजोरिटी ऑफ द टाइम सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द पैराग्राफ। क्योंकि यहाँ पे बॉक्स दिया गया है, इसको हम कहेंगे समरी विथ ए बॉक्स। जो आगे का जो था, ये था समरी विदाउट ए बॉक्स, बिकॉज यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट डायरेक्टली द आंसर फ्रॉम द पैराग्राफ या तो फिर पैसेज। एक चीज का ध्यान रखना है, चाहे समरी विथ ए बॉक्स हो चाहे समरी विदाउट ए बॉक्स हो, आपने ये देखना है कि जब आप आंसर अंदर रखते हो इन द फिल इन द गैप, दैट इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। यू ऑल्सो नीड टू साइमल्टेनियसली चेक कि आपका ग्रामर जो वर्ड है वो ग्रामेटिकली फिटिंग है कि नहीं। अगर वो ग्रामेटिकली फिटिंग नहीं है, देन द आंसर इज गोइंग टू बी, भले ही कितना ही रेलेवेंट क्यों ना लगता हो, अगर ग्रामेटिकली फिट नहीं है, फिट नहीं होता, तो आंसर उसको रॉन्ग दिया जाएगा। सो यहाँ पे देखिए आईएलटीएस में डायरेक्टली ग्रामर नहीं पूछा जाता, बट इनडायरेक्टली द ग्रामर इज टेस्टेड इन दिस वे। मैं सबको ये कहता हूं, आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट पार्ट, बट यू नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच व्हेन यू आर डूइंग अ समरी। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब यू शुड नो व्हाट नाउन इज, व्हाट एडजेक्टिव इज, व्हाट प्रोनाउन इज, व्हाट वर्ब इज, what adverb is, what conjunction is, what interjection is, sorry what preposition is, and finally what interjection is. मैं उसका सेशन यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी जानकारी के बता दूं, knowledge of parts of speech is very important in order to get majority of the answers as right answer. और उसके साथ important है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का नॉलेज आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ए ई आई ओ यू है, तो ये भाई वॉवेल्स है तो उसके आगे ई और एन लगेगा, और कॉन्सोनेंट्स है तो उसके आगे फॉर एग्जांपल ए लगेगा, और वॉवेल है तो उसके आगे एन लगेगा। तो ये छोटा सा नॉलेज आपको बहुत कारगर होगा इन ऑर्डर टू गेट ऑल आंसर्स राइट इन समरी। समरी में एक चीज याद रखो, इफ यू आर हैविंग नाउ द कॉन्फिडेंस, समरी में पूरा 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना बहुत आसान है। ओके तो सर समरी में मुझे कैसे अप्रोच करना है? फर्स्ट, स्कीम द समरी फॉर जनरल मीनिंग। पहले आप क्या करोगे, समरी को देखोगे, यू आर नॉट गोइंग टू डायरेक्टली जंप ऑन टू द पैसेज, पहले समरी को आप स्कीम करोगे। स्कैन द टेक्स्ट फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, बाद में स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए उसको पैराग्राफ में जाओगे, कीवर्ड्स को मार्क करोगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने ये समझना पड़ेगा कि समरी इज बेसिकली पैराफ्रेजिंग ऑफ द पैराग्राफ। आपको बहुत बड़ा पैराग्राफ दिया है, उसको पैराफ्रेजिंग करके उन्होंने समरी दी है, तो आपको ये समझना पड़ेगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिनोनिम्स। लेकिन टेक्निक क्या करोगे, आपको टेक्निक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ट्राई टू प्रेडिक्ट द आंसर्स बिफोर यू लुक एट द ऑप्शंस और द टेक्स्ट। सबसे बड़ी, मैं सबसे सब बच्चों को ये कहता हूं, व्हेन यू डू द समरी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पहले प्रेडिक्ट करो।
डोंट डायरेक्टली जंप ऑन द ऑप्शंस गिवन, डायरेक्टली पैराग्राफ में मत जाओ या तो फिर नीचे जो बॉक्स दिया उसमें मत जाओ। आपने क्या करना है, यू नीड टू प्रेडिक्ट योरसेल्फ कि अगर मैं खुद उसको प्रेडिक्ट करता, अगर मुझे खुद को वर्ड डालना होता तो मैं क्या डालता। इससे क्या होगा कि आप काफी करेक्ट आंसर के बहुत नजदीक जाओगे। शुड द गैप बी फिल्ड विद वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, आपको ये पता चल जाना चाहिए कि अगर नाउन है और उसके आगे फिल इन द गैप है तो वो एडजेक्टिव ही होना चाहिए, अगर वर्ब है उसके पीछे अगर गैप है तो एडवर्ब होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउन है, अगर एडजेक्टिव है और उसके बाजू में फिल इन द गैप है तो नाउन होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू गेट दिस राइट। तो यहाँ पे मैं सबको ये कहना चाहूंगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो पहले क्या करेंगे, द फर्स्ट स्टेप इज यू नीड टू रीड द समरी, you need to predict the answers before jumping onto the paragraph or jumping onto the box. Try to understand the type of parts of speech ये है। फिर look what synonyms and paraphrases in the text rather than words that directly match, मतलब synonyms और paraphrases को देखो। आपने देखना पड़ेगा इसका सिनोनिम, मैंने जैसे ये वर्ड है उसका सिनोनिम क्या है। कभी कभार समरी विथ ए बॉक्स में डायरेक्टली आंसर दिया जाता है लेकिन ज्यादातर सिनोनिम्स होते हैं। ओके, बाद में क्या करना है, डोंट स्पेंड टू मच ऑफ टाइम लुकिंग फॉर द आंसर टू वन क्वेश्चन। अगर आपको लगता है इसका आंसर नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो। इफ यू कांट फाइंड इट, मार्क व्हाट यू थिंक इट माइट बी एंड मूव ऑन। मैं हर बार बच्चों को बोलता हूं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, यू कैन डू द रिमेनिंग वंस, रिमेनिंग वंस करो। काफी अगर जैसे कि काफी ऐसे आंसर्स है जो दूसरे रिमेनिंग क्वेश्चंस में सेट हो जाते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। देन मोर इंपॉर्टेंटली द आंसर्स नॉर्मली कम इन द सेम ऑर्डर। मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा, अगर समरी पूरे पैसेज को कवर करती है, मतलब अगर आपका पूरा पैसेज जो है, जो 700-800 वर्ड्स का पैसेज होता है, उसको पूरे पैसेज को कवर करती है, द आंसर्स आर नेसेसरली गोइंग टू कम इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। लेकिन अगर समरी 2-3 पैराग्राफ्स को या एक छोटे पैराग्राफ को कवर करती है, then for example you need to make sure that answers may or may not come in the sequential order। ये ऐसा हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, if you are doing summary with a box, think about the ones that can't be the correct answer because of meaning of grammar, you can then eliminate these words। मैंने पहले भी बताया था, अगर आपको ये parts of speech का knowledge पता है, अगर आपको पता है कि noun है और उसके बाजू में कोई word है या उसके पहले word है, तो देन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले वर्ड है तो एडजेक्टिव है, तो आप ऑप्शंस में देख सकते हो कौन सा एडजेक्टिव नहीं है, तो काफी ऑप्शंस तो वैसे ही चले जाएंगे। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू स्टूडेंट्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैं यहाँ पे सिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज होना जरूरी है इन ऑर्डर टू डू द समरी। नाउ लेट अस डू अ स्मॉल एक्सरसाइज। चलिए, नाउ ये क्या है, समरी विथ ए बॉक्स है या समरी विदाउट ए बॉक्स है? कैन एनीवन हेल्प मी आउट? इज दिस समरी विथ ए बॉक्स और समरी विदाउट ए बॉक्स? यस गाइस, it's summary with a box, isn't it? It's summary with a box. Okay, okay, fine. Yes, it's summary with a box. Now what you need to do is, मैं आपको ये पूरा पैराग्राफ रीड करने के लिए देता हूं, पहले इसको पढ़ना होगा। Now I want somebody to read it out for me. Who is going to help me out to read this? कौन हेल्प करेगा? I want somebody to read it for me. Yeah, you can raise your hands. Yeah, let me see who has written. Piyush is going to read. Okay, let me give chance to Piyush then. Yeah, Piyush, can you read? Yeah, Piyush, can you read? Okay. Yes, Piyush, can you read? Yes. Yeah, please. The first Yeah, arranged. now पहले क्या करना है, यही टेक्निक का इस्तेमाल करना है सब लोगों को। पहले आप पैराग्राफ रीड नहीं करोगे, यू आर गोइंग टू रीड द समरी एंड ट्राई टू प्रेडिक्ट द आंसर। या द फर्स्ट, समझो कि ये पूरा पैसेज क्या है, क्योंकि ये तो पूरा पैसेज का समरी है, तो आपको पूरा टॉपिक क्या है वो पता चल जाएगा। या प्लीज गो थ्रू इट। द फर्स्ट टाइम Arranged. The first time that and blank डैश, of आप डैश ब्लैंक मत बोलना, डैश बोलना। द फर्स्ट टाइम death. that and yeah, Death of rage was air rage, recorded. air rage. Air Okay, rage was okay, okay. recorded. Now यहाँ पे मैं, sorry Piyush, sorry to bother you. Can anyone tell me what is air rage? Can anyone tell me what is air rage? What is road rage? What is road rage? कोई बता पाएगा what is road rage? Yes. रोड रेज का मतलब होता है, मैं रेज का मतलब बोलता हूं, रेज का मतलब होता है गुस्सा। आपको फॉर एग्जांपल, अगर आप व्हीकल चला रहे हो और 4 रास्तों पे ऑन 4 क्रॉसवर्ड्स, फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी के साथ फॉर एग्जांपल मारा, आप
कार किसी से टक्कर आ गई और आपने एकदम आवेश में आके मारामारी चालू कर दी, और जो होता है मतलब आपने, इट इज नॉट अ प्री मेडिटेटेड थिंग। फॉर एग्जाम्पल आप काफी फुटेजेस देखते हो रोड रेज के, एक दूसरे पे मारामारी करते हैं, उसको रोड रेज कहते हैं। दिल्ली में ऐसे हादसे बहुत बार होते हैं। फॉर्चुनेटली इन गुजरात इट इज नॉट दैट प्रीवेलेंट, लेकिन काफी होते हैं। तो वैसे ही एयर रेज भी होता है। एयर रेज का मतलब फॉर एग्जांपल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल आपने मारामारी चालू कर दी, फेलो पैसेंजर से आप ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हो, आप केबिन क्रू के मेंबर्स के साथ ठीक से पेश नहीं आते, आप बातों में थोड़ा सा एब्यूजिव लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हो, मारामारी करते हो, उसको आप, क्योंकि वो एयर में होता है तो उसको हम कहेंगे एयर रेज, और रोड पे होता है तो उसको हम कहेंगे रोड रेज। इज इट अंडरस्टूड नाउ एवरीबॉडी? यस और नो? Yeah. या, नाउ रीड। The first time that an dash of air rage was recorded was in the 1940s, Very good. but the passenger was never actually charged for an offense because there were no clear rules in place to specify where to प्रोसिक्यूट मतलब prosecute. किसी को कैसे उसको फॉर एग्जांपल उस पे चार्जेस लगाए जाए। ठीक है, फिर इट वाज It was later डैश dash that it would be the country where the plane is registered. Air रजिस्टर्ड। Rage हाँ। has dash significantly since this time, growing by staggering 400% from 1995 to 1998. हम्म, Air rage is dash to be a major problem in the future as air travel increases, as do levels of aggression, एग्रेशन। uh, aggressions. एंग्री। Angry dash can put everyone in danger, including the pilots, the crew, and the other passengers, with some form of dash being the most common consequence. ओके फाइन, थैंक यू पीयूष। नाउ Yeah, इसका मतलब you're ये welcome. द फर्स्ट टाइम दैट एन एयर रेज वाज रिकॉर्डेड, एयर रेज मतलब जो गुस्सा हुआ था, मतलब जो मारामारी हुई, पता नहीं क्या हुआ था, वो 1940 में हुआ था। बट द पैसेंजर वाज नेवर एक्चुअली चार्ज, लेकिन पैसेंजर को चार्ज ही नहीं हुआ, क्योंकि तब रूल्स ही नहीं थे, क्योंकि हवा में होते हो आप, तो कौन सी कंट्री के रूल्स लगेंगे आप पे, कौन सी कंट्री की। फॉर एग्जाम्पल आपने मारामारी चालू कर दी, यहाँ से जा रहे हो आप, यू आर गोइंग टू यूएसए, और बीच बीच रास्ते में मारामारी चालू कर दी, तो क्या करोगे? इंडिया के आईपीसी के रूल्स लगेंगे कि फिर अमेरिका के लगेंगे, वो पहले क्लियर नहीं था। लेकिन धीरे 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 ये सब कुछ होने लगा। यहाँ पे लिखा है एयर रेज बहुत सिग्निफिकेंटली ग्रो कर रहा है, एंड नाउ इसके यहाँ पे ऐसा लिखा है कि एंग्री जो भी है, ये काफी लोगों की जान को जोखिम में डाल सकते हैं, और देन बीइंग द मोस्ट कॉमन कॉन्सिक्वेंस। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू 5 मिनट्स स्टूडेंट्स। सो आप क्या करोगे, वन के सामने फर्स्ट करो आंसर बी है, तो यू आर गोइंग टू राइट वन के सामने बी, टू के सामने सी, वैसे करके। 5 मिनट्स टू यू, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। चलिए। आप वैसे ही करोगे तो काफी आंसर्स आ जाएंगे। अगर समरी समझ लिए तो आप पैराग्राफ को देखे बगैर काफी आंसर दे पाओगे। Whatever answer you give, try to put it in the blank and check out whether it is grammatically fitting or not.
Yeah, we'll check the answers. Just a minute. Let me give chance to. Yeah, let me know when you're all done. Okay. Is it done, everybody? Shall we go on for checking the answers? I want answers yes or no from everybody. तो मैं चेक करना चालू करवा दूं. And I want somebody to help me out on this. Can anyone help me out in reading? Yeah, Nand Kishore. Yeah, just hold on. Okay, Parth, can you read? Okay, let me give chance to you. Yes, sir. Yeah. So yeah, I hope everybody is done before we go on checking the answers. Everybody? I'm not asking you, Parth. Parth, I can listen to your voice. What about the others? Very good. Chali, let us check the answers now. Almost 5 minutes have passed, so we need to go ahead. Chali, yeah, read the first one, the first line. Yes. This one, Uh, the first. the first recorded case of an airline passenger turning seriously violent during a flight, a phenomenon now widely known as air rage, Okay, fine. happened in So in that case, what could be the answer? What is the answer of first one? आप देखो, the first time, मतलब एक ऐसा case, the first recorded case of an airline engineer, recorded case. तो case के लिए क्या रखोगे यहाँ पे? For example, what are you going to say? Case है. So answer of this is going to be incident. So answer of first is going to be C. Is it clear, everybody? The answer आपने incident नहीं लिखना है exam में. You need to write C. So please take care of that part. The answer of first is C. Okay. Then widely known as air rage, happened in 1947 on a flight from Havana to Miami. A drunk man assaulted another passenger and beat a flight attendant. However, the man escaped punishment because it was not then clear under whose legal control a crime committed on plane was. okay. The country where the plane was registered or the country where the crime was committed. In 1963, at the Tokyo Convention, it was decided that the laws of the country where the plane is registered take precedence. Okay, fine. So यहाँ पे देखो, it was not clear. It was not clear that इसका मतलब it was not clear मतलब it was later established. बाद में ये clear हुआ, बाद में ये established हुआ कि कहाँ पे ये क्या करेंगे हम लोग. So answer of second is going to be G. Because later is what it was established कि अभी हमें क्या करना है. तो यहाँ पे लिखा है the country where the plane was registered. Plane जहाँ पे register हुआ होगा, फॉर एग्जाम्पल एयर इंडिया का प्लेन है, उसमें आपने बवाल की, भले ही आप स्विट्जरलैंड जा रहे हो तो एयर इंडिया के मतलब इंडिया के रूल्स लगेंगे. सो यहाँ पे लिखा है बिकॉज देयर वाज नो क्लियर रूल्स इन प्लेस टू स्पेसिफाई वेयर टू एग्जीक्यूट, इट वाज लेटर एस्टैब्लिश्ड. बाद में ये तय हुआ. ओके फाइन. देन The frequency of air rage has expanded out of proportion. एक्सपांडेड आउट ऑफ प्रोपोर्शन मतलब बढ़ गए हैं. तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, देखो एक्सपांडेड मतलब बढ़ गए हैं, तो उसके लिए बेटर ऑप्शन है जे. कि जे इसलिए क्योंकि इंक्रीज्ड, इट इज बेसिकली इंक्रीज. सो आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी जे. या फिर यहाँ पे पढ़ना चालू करो.
there were yeah. There were 266 air rage incidents out of approximately 4 million passengers, a 400% increase from 1995. In the same period, American Airlines showed a 200% rise. Rise, Uh, bus, full stop. Air travel is predicted to uh, rise. Air travel is predicted. Air rage, हाँ तो क्या होगा? यहाँ पे लिखा है time growing by staggering फोन. हाँ, air rage is this. आंसर ऑफ फोर्थ वन इज गोइंग टू बी क्या आएगा? प्रेडिक्टेड टू बी ए मेजर प्रॉब्लम. यहाँ पे लिखो, देखो तो यहाँ पे लिखा है कि भविष्य में एयर ये जो होगा इट इज गोइंग टू बी ए मेजर इश्यू एंड एयर एज मे बिकम अ मेजर इश्यू इन कमिंग ईयर्स. मेजर क्योंकि ये प्रेडिक्ट एयर ट्रैवल भी बढ़ रहा है तो जाहिर है और एयर रेज भी बढ़ रहा है तो भविष्य में इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट इज गोइंग टू बी ए मेजर प्रॉब्लम, मेजर इश्यू इन कमिंग ईयर्स. सो आंसर ऑफ फोर्थ इज गोइंग टू बी ए, प्रेडिक्टेड. ओके फाइन. अब यहाँ पे देखो कहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे आ गए. अब इसके नीचे ही होगा व्हाट इज द आंसर ऑफ फिफ्थ वन. हाँ यहाँ पे फिफ्थ में देखो व्हाट इज द आंसर? डी. क्योंकि यहाँ पे देखो या कैन यू रीड दिस? aside from discomfort and disruption, air rage poses some very real danger to flying. The most extreme of this is when out of control passengers enter the cockpit. This has actually happened on a number of occasions, the worst of which have resulted in the death resulted in the death and injury of pilots or the intruder taking control of the plane, almost resulting in crashes. In addition, हाँ तो ये क्या आएगा? फिफ्थ का क्या आएगा? अ पैसेंजर कैन पुट एवरीवन इन डेंजर इंक्लूडिंग ये कौन कर रहा है? आउट ऑफ कंट्रोल पैसेंजर्स. सो यू कैन से द आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी पैसेंजर. फिफ्थ का आंसर आएगा पैसेंजर कैन पुट एवरीवन. एक पैसेंजर कैन पुट एवरीवन इन डेंजर. तो इसके लिए फिफ्थ का आंसर आएगा डी. ओके देन Berserk passengers sometimes attempt to open the emergency doors while in flight, putting the whole aircraft in danger. ये एक्सट्रीम केस होगा. ये एक्सट्रीम, ये जहां पे लिखा है ये एक्सट्रीम केस है जहां पे ऐसा होता है कि भाई वो कॉकपिट में पहुंच जाता है, ये पायलट को परेशान कर देता है, उसको मार देता है, दरवाजा खोल देता है प्लेन का. वो एक्सट्रीम एग्जांपल्स है. लेकिन कॉमन क्या है यहाँ पे लिखो दिस आर एक्सट्रीम एग्जांपल्स. पढ़ो आगे. These are extreme examples and cases of air rage. More commonly क्या है? कॉमनली क्या है कि इन फिजिकल असॉल्ट ज्यादातर क्या होता है कि मारा मारी करता है आदमी. जो प्लेन खोल देना, कॉकपिट में चले जाना, दरवाजा खोल देना, वो बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल्स है. लेकिन ज्यादातर केस में फिजिकल असॉल्ट होता है, मतलब मारा मारी, किसी को मार दिया, हाथापाई कर दी. तो यह होगा विथ सम कॉमन फॉर्म ऑफ फिजिकल असॉल्ट. तो असॉल्ट के लिए वर्ड है यहाँ पे असॉल्ट बीइंग द मोस्ट कॉमन कॉन्सिक्वेंस. Is it getting clear now? Tell me exactly how many of you got the answers right. Check it out. So first answer is going to be, check शांति से सुकून से check कर लो. First is C, second is G, third is J, 4 is A, 5 is D and 6 is F. Okay. Very good. Very good. Very good. Have you understood now? Everybody, have you understood? Okay, very good. If you got all correct, it is great. Even if you got 1 or 2 correct, but I wanted you, यहाँ पे क्लियर चीज एक समझ के आओ. क्या करना है आपको? पहले पैराग्राफ को नहीं पढ़ना है आपको, पैसेज को, आई मीन समरी को पहले पढ़ना है. पूरा उसको पढ़ लो. ट्राई टू प्रेडिक्ट द आंसर्स, और प्रेडिक्ट द आंसर्स करके अगर अंदर जाओगे तो आपका काम काफी आसान हो जाएगा. यहाँ पे एक चीज का भी मैंने जिक्र किया, यू ऑल्सो नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. पता चलना चाहिए कि नाउन के बाजू में, वर्ब के बाजू में, एडवर्ब के पहले, नाउन के बाद क्या आता है, वो चीज का थोड़ा सा नॉलेज होगा. पार्ट्स ऑफ स्पीच का मेरा वीडियो वहां पे है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का, हमारी ऑनलाइन वेबसाइट पे, तो आपको वो मिल जाएगा. थोड़ा सा नॉलेज ले लेना. उसके पहले हमने ये देखा व्हाट वी डिड वाज ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. ट्रू फॉल्स नॉट गिवन मैंने 3 ही एग्जांपल दिए थे. ये एग्जांपल पर्याप्त है आपको समझाने के लिए. क्या ध्यान रखना है? मैनी, मोस्ट, मेजॉरिटी, ये छोटी छोटी चीजें हैं, वो क्या है. एंड फाइनली हमने पहले ये सीखा कि दो सेंटेंसेस में पूरे एसेस को, मतलब इंट्रोडक्शन को कैसे लिखा जाए. वो सबसे अच्छा था जो पहला सेशन था, जिसमें 2 सेंटेंस में आप इंट्रोडक्शन किसी भी ऐसे का कैसे लिख सकते हो, वो मैंने समझाया था. ओके, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट स्टूडेंट्स? Any students, any questions, any doubts? Okay, shall we discontinue now? It is almost up 6:45 होने को आए हैं. So could we discontinue? Thank you Maya for saying that. Word limit आप उसको बढ़ा सकते हो, it's fine. Yeah, if you use 2 sentences, then word limit will be 35 to 45 words, but that is fine, not an issue.
इट इज फाइन इफ यू आप पैराफ्रेजिंग करके उसको बढ़ा सकते हो दीपक, उसको पैराफ्रेजिंग इंट्रोडक्शन जो टास्क स्टेटमेंट है उसको पैराफ्रेज ज्यादा अच्छी तरह से कीजिए तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर? थैंक यू सो मच, हैप्पी वीकेंड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू।